Paper number 3, title Inorganic Chemicals, Chemistry 1, Stereochemistry, Metal-Ligands, Equilibria and Reaction Mechanism of Transition Metals Complex. Module number 5, title Metal-Ligand Equilibria in Solution. Module tag CHE underscore P3 underscore M5. Principal Investigator Professor A.K. Bakshi. Sri Shankar Lal, Professor, Department of Chemistry, University of Delhi. Co-Principal Investigator and Technical Coordinator Dr. Vimar Rar, Deputy Director, Center for E-Learning and Assistant Professor, Department of Chemistry, SGTB, Khalsa College, University of Delhi. Specialized in e-learning and educational technology. Paper Coordinator Professor R.K. Sharma, Department of Chemistry, University of Delhi. Content Writer Dr. Sulekha Chandra, Department of Chemistry, Zakir Hussain, Delhi College, University of Delhi. Mrs. Rupa Kumari, Assistant Professor, Department of Chemistry, HGTB, Khalsa College, University of Delhi. Reviewer Professor B.S. Garg, Professor Emeritus, Department of Chemistry, University of Delhi. Anchor Institute, SGTB, Khalsa College, University of Delhi. Table of content. First, learning outcome. Second, introduction. 2.1 Stability constant and introduction. 2.2 Stability constant detailed view. Third, thermodynamics and kinetic stability. 3.1 Thermodynamics aspects of complex. 3.2 Kinetics aspects of complex. Step 4, stepwise formation of complex. 4.1 Stepwise formation constant. 4.2 Relation between K1, K2, Kn and beta n. 4.3 Trend in stepwise formation constant. 4.4 Formation function n bar. 4.5 Degree of overall complexation. 4.6 Degree of formation of particular complex MAC. Fifth, relation between different functions. 6 Application of stability constant. 7 Summary. Learning outcome. After studying this module, you shall be able to, अगर आप ये मॉड्यूल सीखेंगे तो आप क्या सीखने वाले इस मॉड्यूल से? नो अबाउट थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स का थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जान लेंगे. लर्न द स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड स्टेबिलिटी कांस्टेंट. कॉम्प्लेक्स और स्टेबिलिटी कांस्टेंट स्टेप वाइज फॉर्मेशन सीख लेंगे. आइडेंटिफाई द ट्रेंड इन स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट. स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेंगे. इवैल्यूएट द फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी का फैक्टर इफेक्ट इवैल्यूएट करेंगे. इंट्रोडक्शन. स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. मेटल कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इन थियोरेटिकल केमिस्ट्री, relation must often be found between such quantities and certain property of the metal ions or the ligand stability constant are widely used in analytical chemistry in devising new method or estimating interfering effect. Theoretical chemistry relation जहाँ पे quantities और metal आयन या फिर लिगैंड का सर्टेन क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन रहता है. स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादातर यूज़ होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जिसकी वजह से नए नए मेथड्स फॉर्म होते हैं या फिर इंटरफेयरिंग इफेक्ट एस्टिमेट कर सकते हैं. दे मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन सच ए एरिया एज द काइनेटिक ऑफ रिएक्शन इन सोल्यूशन इन्वॉल्विंग मेटल कॉम्प्लेक्सेस, द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ मेटल आयंस एक्सेट्रा. ये कंसिडर करता है ऐसे एरिया को जहाँ पे रिएक्शन का काइनेटिक सोल्यूशन में इन्वॉल्व रहता है मेटल कॉम्प्लेक्स, मेटल आयन का biological effect, etc. Complexation reaction in aqueous solution is substitution reaction where ligand replace solvent molecule water from the coordinator sphere of the metal ion. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो रहता है एक्वेसियस सोल्यूशन में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहता है जहाँ पर लिगैंड जो रहता है रिप्लेस करता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, वाटर को कोऑर्डिनेटर स्फीयर मेटल आयन से. However, the number of water molecule replaced need not to be the same as the number of ligand added. नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो रिप्लेस होता है ज़रूरत नहीं है कि नंबर ऑफ लिगैंड भी सेम हो जो ऐड होता है.
because in some cases different coordinated species may have a different coordination number around the central metal ion, क्योंकि अलग अलग कोऑर्डिनेटेड स्पीशीज़ के केस में जहाँ पे अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सेंट्रल मेटल आयंस के आसपास रहता है, इन दिस इक्वेशन वाटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, सो इट कैन बी omitted फ्रॉम द फॉर्मूला। इस इक्वेशन में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है लार्ज एक्सेस में, तो इसको फॉर्मूला से अलग कर सकते हैं। इन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, इन कॉम्प्लेक्सेशन reactions, those ligands which can act as bridge between metal ions may form polynuclear complex. पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के केस में कॉम्प्लेक्स इन रिएक्शंस जहाँ पे लिगैंड जो है ब्रिज के जैसा एक्ट करता है, ये ब्रिज के जैसा एक्ट करने वाला लिगैंड मेटल आयंस के बीच में होता है जो polynuclear complex फॉर्म करता है। In addition to polynuclear complex, another species example, mixed ligand complex like hydroxo complex, protonated complex may be present। तो ऐसे polynuclear complex एडिशन में दूसरे स्पीशीज जैसे कि मिक्स लिगैंड कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स, प्रोटोनेटेड कॉम्प्लेक्स जो है प्रेजेंट रहता है। However, we shall discuss at the moment only in the case of polynuclear complex। लेकिन इस केस में हम polynuclear complex के केस में हम इसको डिस्कस करेंगे। 2.1 स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड इंट्रोडक्शन। तो एज एन इंट्रोडक्शन हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट सीखेंगे। द इक्वेशन रिप्रेजेंट द interaction of complex agent with the metal ion can be represented as, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स एजेंट इंटरेक्शन को, जहाँ पे मेटल आयन जो रिप्रेजेंट होता है Ma प्लस Na देता है MmAn। M और N, स्मॉल m और स्मॉल n जो है कोफिशिएंट है, स्टीरियो stoichiometric coefficient। Applying the law of masses action, beta mn raised to 0 is equal to in bracket mman upon mman m raised to n a raised to n beta 0 mn mman upon m raised to m a raised to n f mman upon f raised to small m f a raised to n beta mn। तो f mman upon f m raised to power m f a raised to n। The law of mass action is valid only when activity are used instead of concentration। लॉ ऑफ mass action तभी वैलिड है जब एक्टिविटी जो यूज़ होता है concentration लेते। लॉ ऑफ मास एक्शन तभी वैलिड होता है जब जब कॉन्सेंट्रेशंस लेंगे एक्टिविटीज़ के टर्म्स में, बिकॉज एक्टिविटी ऑफ अ स्पीशीज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इस कॉन्सेंट्रेशन एंड इस एक्टिविटी कोफिशिएंट। क्योंकि स्पीशीज़ का एक्टिविटी इक्वल रहता है उसके कॉन्सेंट्रेशन से और एक्टिविटी कोफिशिएंट से। वी हैव द अबाउट रिलेशन बिटवीन स्टोशियोमेट्रिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, environment concentration and thermodynamics equilibrium constant involvement activities। हमारे पास ऐसा रिलेशन है स्टोशियोमेट्रिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में, जहाँ पे कंसंट्रेशन और थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में इन्वॉल्व रहता है एक्टिविटीज़, वेयर curve bracket represent denote the activity of different species involved and beta 0 mn is thermodynamic overall stability constant, जहाँ पे कर्व्ड ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है अलग अलग स्पीशीज़ की एक्टिविटी को, और बीटा 0 mn जो है थर्मोडायनेमिक्स ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट रहता है। टर्म इन द ब्रैकेट डिनोट द कॉन्सेंट्रेशन फंक्शन आर द एक्टिविटी ऑफ स्पीशीज़ इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस। तो यहाँ पे ब्रैकेट डिनोट करता है कॉन्सेंट्रेशन फंक्शन को, जहाँ पे स्पीशीज़ का एक्टिविटी इन्वॉल्व रहता है इस रिएक्शन में। एंड बीटा mn इज स्टोशियोमेट्रिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट। बीटा mn जो है स्टोशियोमेट्रिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। The activity of particular solute approaches the concentration as the system approach
or certain limiting state chosen arbitrary पर्टिकुलर सॉल्यूट का एक्टिविटी अप्रोच करता है कंसंट्रेशन को जहाँ पे उसका सिस्टम अप्रोच करता है सर्टन लिमिट आर्बिट्ररी चूज करता है इन केस ऑफ स्टैंडर्ड एक्टिविटी स्केल दिस लिमिटिंग स्टेट इज द प्योर सॉल्वेंट तो स्टैंडर्ड एक्टिविटी के केस में ये लिमिटिंग स्टेट जो है प्योर सॉल्वेंट है thermodynamically equally well defined and useful activity scale can be obtained by choosing a mixed solvent or a solution of a solid as a limiting state तो thermodynamically वेल डिफाइन है यूजफुल एक्टिविटी स्केल वो मिलता है जब मिक्स सॉल्वेंट या फिर सॉल्ट का सॉल्यूशन को लिमिटिंग स्टेट करके चूज करते हैं ओनली स्टेबिलिटी कांस्टेंट रिफरिंग टू द सेम एक्टिविटी स्केल कैन बी डायरेक्टली कंपेयर तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट ही सेम एक्टिविटी स्केल को रिफर करता है और वो डायरेक्टली कंपेयर होता है इट इज़ एविडेंट दैट the calculation of thermodynamics equilibrium constant stability constant require either the knowledge of activity coefficient or at least they should be kept constant इससे एविडेंट होता है कि थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैलकुलेशन जो मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसके लिए एक्टिविटी कोफिशिएंट का नॉलेज होना ज़रूरी है या फिर कांस्टेंट रहना ज़रूरी है for the ion of which do not take part in formation of complex it is possible to create an ionic medium तो आयन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता है ये पॉसिबल होता है ताकि ionic medium क्रिएट हो सके दिस इज डन बाय एडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ supporting electrolyte which remain approximate constant even if the concentration of complex forming ion varied तो ये होता है जब सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का लार्ज अमाउंट ऐड होता है जिसकी वजह से कांस्टेंट होता है और कॉम्प्लेक्स जो आयन फॉर्म करता है उसका कॉन्सेंट्रेशन वेरीड होता है इन सच अ मीडियम दैट इज द कांस्टेंट आयोनिक मीडियम द एक्टिविटी कोफिशिएंट माइट बी रिगार्डेड एज कांस्टेंट एंड स्टेबिलिटी कांस्टेंट आर वैलिड ओनली फॉर द मीडियम यूज्ड तो इस मीडियम में कांस्टेंट आयोनिक मीडियम रहता है तो एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है उसको कांस्टेंट या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऐसा वैलिड बना देते जब वैलिड तभी बनाते जब मीडियम यूज होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिटेल व्यू Usually, the complexation reaction are studied in solution under specific condition and the bond energies are calculated. And since absolute bond energy refer to the gas phase equilibrium, तो यूजुअली कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन स्टडी होता है सॉल्यूशन में जहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन होता है और बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट होता है क्योंकि एब्सॉल्यूट बॉन्ड एनर्जी रिफर करता है गैस फेस इक्विलिब्रियम को एम रिएक्ट करता है ए के साथ ताकि एम ए फॉर्म कर सके एम ए रिएक्ट करता है ए के साथ ताकि एम ए टू एक्सेट्रा फॉर्म हो सके